Good morning, students. I hope all of you understand about the previous topics that I have explained in the previous video. Students, today I am going to start again another topics in your geography subject, chapter number 8, climate. Now, students, you see here the given topics are there: monsoon phenomena and its mechanism, 4 seasons, and then after that the distribution of rainfall. So students, now we are going to start the first topic, and the first topic is the monsoon phenomena and its mechanism. Students, now for understanding this point, now you see this paragraph is given in your book, and this is the monsoon are the periodic seasonal winds. They develop because of differential heating as well as cooling of the land and sea. They are divided into 2 wind systems, the summer monsoon and the winter monsoon. So now students, for understanding about the mechanism of monsoon, so now we are going to divide into 2 parts. Monsoon, we are going to divide the Indian monsoon into 2 parts, the summer monsoon and the winter monsoon. And students, all of you also read this topic in the previous class 9. Okay students, now we are going to start to understand about the monsoon phenomena and its mechanism. Students, all of you know that the heating of the land and the cooling of the land. The heating of the land and the cooling of the land is very important for this monsoon mechanism. Actually students, due to the monsoon mechanism, our country India received the rainfall in the winter season and also in the summer season. In the winter season, we receive the rainfall from the northeast monsoon winds, and in the summer season, our country India received the rainfall from the southwest monsoon winds. All of you know that our country is surrounded by the 3 sides from the sea and ocean. In the west, you see that the Arabian Sea. In the south, you see that the Indian Ocean, and in the east, you see the Bay of Bengal. So now students, in this topic, all of you know that हम जानते हैं कि जो मानसून मैकेनिज्म होता है वो हमारे भारत की जमीन के गर्म होने और ठंड होने पे निर्भर करता है. एक्चुअली हमारे यहाँ जब समर सीजन स्टार्ट होता है, जब हमारे कंट्री में टेम्परेचर नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है, तो उस समय हमारे यहाँ देखते हैं बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है. उस समय हमारी जमीन जो होती है वो बहुत गर्म हो जाती है. इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है, जमीन जो प्रेशर कंडीशन होती है हमारे कंट्री की, वो लो प्रेशर कंडीशन हो जाती है. वहीं पे अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं, जहां पे अरेबियन सी सिचुएटेड है, तो वहां पे बहुत अधिक गर्मी पड़ने से एवोपरेशन तेज हो जाता है. तो जब एवोपरेशन तेज हो जाता है तो बहुत सारा मॉइस्चर क्या होता है, अरेबियन सी के ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अरेबियन सी के ऊपर हाई प्रेशर कंडीशन बन जाती है. मींस अरेबियन सी के ऊपर हाई प्रेशर कंडीशन और हमारे इंडिया कंट्री के लैंड मास के ऊपर लो प्रेशर कंडीशन. तो मानसून मैकेनिज्म हमें यह भी तो बताता है कि जब कहीं पर हाई प्रेशर होता है और जब कहीं पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो हमेशा हाई प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करता है. तो जब हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू होता है, तो जो वहां पे एवोपरेशन होके जो वहां पे क्लाउड्स बने थे, अब वो धीरे धीरे हमारे इंडिया कंट्री की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं. तो जब हमारे वो इंडिया कंट्री की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे यहाँ तब मानसून सीजन का अराइवल स्टार्ट हो जाता है. और जो मानसून सीजन होता है हमारे यहाँ, वो लगभग ये माना गया है कि 1 जून से और 15 सितंबर तक हमारे कंट्री में मानसून सीजन रहता है. फिर उसके बाद ये तो समर मानसून हो गया. अब हम लोग आते हैं विंटर मानसून को समझने के लिए. तो विंटर मानसून के लिए जब हम लोग बात करते हैं, तो बेटा हम लोगों ने ये चीज देखा है कि हमारे यहाँ कभी कभी विंटर में नवंबर में बारिश हो जाती है, मंथ ऑफ जनवरी में भी बारिश हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? फिर एकदम जो हम लोगों ने समर मानसून के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग उसको रिवर्स करते हैं.
रिवर्स करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रेशर कंडीशन पहले इंडिया लैंड मास पे लो प्रेशर थी, अब क्लाउड्स और बहुत सारा मॉइस्चर आ जाने की वजह से यहां पे प्रेशर कंडीशन अब हाई हो गई। और जो प्रेशर कंडीशन अरेबियन सी के ऊपर हाई बनी हुई थी तो उसका सारा तो मॉइस्चर हमारे कंट्री की तरफ आ गया। अब वहां पे मॉइस्चर रहा नहीं और अब वहां पे गर्मी सर्दियों का मौसम आ गया, जिसकी वजह से अब एवोपरेशन रेट भी स्लो हो गया। तो इसलिए अरेबियन सी क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको समर मॉनसून में बताया कि मैकेनिज्म ये भी हमें बताता है कि हमेशा हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो जब हमारा लैंड मास हाई प्रेशर बन जाता है और अरेबियन सी लो प्रेशर बन जाता है तो फिर बादल जो क्लाउड्स होते हैं वो फिर वापस अरेबियन सी की तरफ जाते हैं। तो जब वो वापस जाते हैं तो जहां जहां जिस एरिया से वो निकलते हैं वहां पे वो बारिश को कराते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसको बोला है विंटर मानसून, क्योंकि ये मंथ ऑफ नवंबर और मंथ ऑफ दिसंबर में ज्यादातर बारिश होती है। इसे हम लोग रीट्रीट भी बोलते हैं, रीट्रीट मानसून सीजन। तो ये था बेटा मानसून फेनोमेना एंड इट्स मैकेनिज्म। Monsoon phenomena and its mechanism means high pressure and low pressure. In the summer season, when our country India received the high temperature, so then what happened? Our country India become the low pressure, and then after that the Arabian Sea become the high pressure. So now the high pressure now start to move towards the low pressure area, and in this condition our country received the rainfall, and in the winter season our India land mass become the high pressure and the Arabian Sea become the low pressure. So again the high pressure start to move towards the low pressure area. So now this is the monsoon mechanism. I hope all of you understand. Then after that we are coming on the 4 seasons. So now in the 4 seasons, so all of you see in your book the 4 seasons are mentioned. Now the 4 seasons are mentioned like the hot and dry summer, now hot and wet rainy season, then after that the retreating monsoon and the cold and dry winter season. Okay students, now in this 4 seasons always few questions are asked in your board question paper. Now what type of the questions will be asked from these 4 seasons? Now I am going to tell you. Students, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें टेम्परेचर, समर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, विंटर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मानसून सीजन में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और एक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इन 2 पॉइंट से इसमें क्वेश्चंस को बोर्ड की तरफ से पूछा जाता है, टेम्परेचर कंडीशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सपोज दैट नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ हॉट एंड ड्राई समर। अब हॉट और ड्राई समर को पूछा गया, तो पूछा गया कि ये हमारे कंट्री में किस मंथ में हॉट और जो समर सीजन है वो हमारे किस मंथ में रहता है। तो यहां पे हमने देखा कि मार्च टू मे, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मार्च टू मे। Then after that, now the second question that is arise from the hot and dry summer season. What is the temperature? What is the temperature in summer? So near about, now you see that the temperature is given near the average. You have to take the average temperature, 30 degree Celsius to 32 degree Celsius. Now what is the pressure condition in India during the summer season? So I have already told you about that. The pressure condition become the low pressure. लो प्रेशर इसलिए हो जाता है क्योंकि बेटा उस समय हमारे यहाँ एयर में मॉइस्चर नहीं होता है, जिससे कि जो हवा होती है वो काफी गर्म होती है और काफी क्या होती है, हल्की हो जाती है। आपको पता है होना चाहिए कि जो गर्म एयर होती है वो हल्की होती है और वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो जब कोई विंड ऊपर की तरफ उठेगी, नीचे की तरफ उसका प्रेशर कम होता है, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर इसको हम लोग बोलते हैं। देन आफ्टर दैट नाउ यू सी दैट द second one is the southwest monsoon season. Okay student, now the southwest monsoon season or the monsoon season in our country India. Okay, why we call this one southwest monsoon season? We can say also the simple what
द मानसून सीजन, बट एवरी टाइम वी टेक द नेम द साउथ वेस्ट मानसून। हम साउथ वेस्ट मानसून सीजन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बताया जो हमारे यहाँ समर मानसून का अराइवल होता है वो अरेबियन सी की तरफ से होता है। किस तरफ से होता है? अरेबियन सी की तरफ से होता है। और वो अरेबियन सी का अगर हम लोग पार्ट देखें तो वो हमारे कंट्री से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको साउथ वेस्ट मानसून सीजन कहते हैं। फिर इसमें वही सेम चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है, टेम्परेचर कंडीशन को ध्यान रखना है, फिर यहाँ पे कैसा ह्यूमिड कंडीशन है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन चीजों पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नाउ यू सी दैट this is the map of India given, and from this way the monsoon, the southwest monsoon winds entered in our country India, so it is called the southwest monsoon season. Then after that we are going to understand about the retreating monsoon, so now in the retreating monsoon we also know that the winter monsoon. Now we are going to understand, I have already told you in the monsoon of mechanism, because our country India become the high pressure and the Arabian Sea become the low pressure. So now the mechanism say that the high pressure now start to move through the low pressure area. जो high pressure है अब वो किस तरफ की तरफ जा रहा है? लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। इसलिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो मॉनसून विंड्स हमारे यहाँ क्लाउड्स आए थे अब वो वापस अरेबियन सी की तरफ जा रहे हैं। तो जब वो वापस अरेबियन सी की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में जो जो चीजें उनको मिल रही हैं वहां पे जहां जहां से वो निकल रहे हैं वहां पे बारिश हो रही। जैसे हमने देखा कि तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है इंडिया का, वहां पे जो विंटर जो रेनफॉल रिसीव होती है वो अक्टूबर और नवंबर में रिसीव होती है, वहां पर जून जुलाई अगस्त में रिसीव नहीं होती है। क्यों नहीं रिसीव होती है? क्योंकि जब मॉनसून विंड्स एंटर करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स में जो हिल्स हैं जैसे सियाद्री है और अन्नामलाई है, कार्डमम हिल है, तो वो मॉनसून विंड्स का रास्ता रोक लेती हैं, जिससे कि क्या होता है जो क्लाउड्स हैं वो उस तरफ नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब ये वापस रिवर्स होके जाते हैं तो इसलिए वहां तमिलनाडु की तरफ बारिश होती है। अगेन नाउ द लास्ट सीजन इज द कोल्ड सीजन। फिर वही बात आती है, कोल्ड सीजन में हमें इसका ड्यूरेशन देखना है इंडिया में कि किस मंथ से किस मंथ तक रहता है। देन जैसे सिंपल सा है कि दिसंबर से हमारे यहाँ कोल्ड मंथ को स्टार्ट मान लिया जाता है और उसके बाद से ये लगभग हम लोगों के यहाँ मिड ऑफ मार्च तक माना जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कोल्ड सीजन का जो टेन्योर पीरियड है, जो टाइम है, वो इतना रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, कहीं कहीं पे हमारे यहाँ जनवरी में रेनफॉल भी रिसीव हो जाती है। तो इसी तरीके से हम लोगों को इन 4 सीजन्स के बारे में पढ़ना है। तो ज्यादा हमें किस पे फोकस करना है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है, यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन पे फोकस करना है और ये किस मंथ से किस मंथ के बीच में हमारे यहाँ कौन सा सीजन का टेन्योर या टाइम होता है। तो ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है 4 सीजन्स in our country India. Now in the next or the last, then after that, now few other important topics are given like that the tropical cyclones, October heat and the other topics. So now in the tropical cyclones like the Kal Baisakhi, all of you know that, you read it, and other like the western disturbance. So these types of cyclones occurs in our country India. Then after that, now we are coming on the next point, and the next point is the distribution of rainfall. Now the distribution of rainfall is for that यहाँ इसके थ्रू हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में होता है। अब जैसे हैवी रेनफॉल एरिया, अब हैवी रेनफॉल एरिया में हमें एक चीज को ध्यान रखना होगा, जैसे जो हैवी रेनफॉल एरिया हम उस एरिया को बोलते हैं जहां पे 200 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है, उसे हम लोग हैवी रेनफॉल बोलते हैं।
मॉडरेट जहां पे 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है उसे हम लोग मॉडरेट रेनफॉल बोलते हैं। देन आफ्टर दैट द लो रेनफॉल, तो लो रेनफॉल मीन जहां पे 50 से कम बारिश रिसीव होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश रिसीव होती है या 50 से 100 तक के बीच में रिसीव होती है, उसे हम लोग लो रेनफॉल एरिया बोलते हैं। और स्कैनिटी रेनफॉल एरिया जहां पे हमारे यहां बहुत कम बारिश रिसीव होती है, मतलब 50 से भी कम रिसीव होती है, उसे हम लोग लो रेनफॉल एरिया बोलते हैं। अब नाउ आई एम गिविंग यू few examples about the high rainfall area, moderate rainfall area, low rainfall area and the scanty rainfall area। अब जैसे हाई रेनफॉल एरिया की बात हम लोग कर रहे थे, तो हाई रेनफॉल एरिया में हम लोगों ने क्या देखा, जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश रिसीव होती है। अब जैसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं केरला। केरला में 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल रिसीव होती है, इसलिए वो हाई रेनफॉल एरिया। क्यों वहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल रिसीव होती है? एक्चुअली नाउ थ्रू दिस मैप ऑफ इंडिया, नाउ यू क्लियरली सी द केरला इज सिचुएटेड हियर, ओके, एंड द मॉनसून विंड्स एंटर फ्रॉम दिस वे। तो नाउ द फर्स्ट पॉइंट that hit the monsoon wind in the region of Kerala. So Kerala is received the high rainfall in our country India. Then after that, now all of you come on the moderate rainfall area. Now in the moderate rainfall area, now this is the northern part of our country receive the moderate rainfall in our country India. Now the scanty rainfall. So now this Thar area receive the scanty rainfall in our country India, means below the 50. Why the Thar area receive the below the 50 rainfall? Because due to the standing of Aravalli hills. यहाँ पे Aravalli hills के होने की वजह से ये क्या करते हैं, मानसून क्लाउड्स को उस तरफ जाने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया क्या होता है, बहुत कम रिसीव करता है रेनफॉल। Okay students, now in this video, now few other important topics like the monsoon burst and the break of monsoon, the two words that are used in this chapter। तो the monsoon burst means क्या होता है, जैसे monsoon burst हम लोग उससे कहते हैं sudden rainfall, sudden heavy rainfall with the lightning and thundering is known as the burst of monsoon। जब अचानक से बहुत तेज बारिश होती है लाइटनिंग के साथ और थंडरिंग के साथ, तो उसे हम लोग बर्स्ट ऑफ मानसून बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बादल का फट जाना, बहुत ज्यादा बारिश एक जगह पे हो जाना, तो उसे हम लोग बर्स्ट ऑफ मानसून बोलते हैं। नेक्स्ट जो कीवर्ड यूज किया गया है उसे हम लोगों ने यूज किया है ब्रेक ऑफ मानसून। ब्रेक ऑफ मानसून मीन्स जब बारिश क्या होती है, रुक रुक के होती है। जैसे आज हम लोगों के यहाँ बारिश हुई, फिर 4 दिन के बाद हुई, फिर 1 हफ्ते के बाद हुई, इस तरीके से जो बारिश होती है उसे हम लोग ब्रेक ऑफ मानसून कहते हैं। फिर उसके बाद से 2-3 वर्ड्स के और इस्तेमाल हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे मैंगो शार्क और काल बैसाखी। एक्चुअली दीज आर द 2 नेम्स ऑफ द लोकल रेनफॉल। These are the 2 names of the local rainfall, the mango shower and the Kal Baisakhi. The Kal Baisakhi occurs in the west of Bengal and the Assam. जो काल बैसाखी रेनफॉल होती है वो मार्च और अप्रैल के बीच में होती है, जो कि असम के रीजन में होती है और वेस्ट बंगाल के रीजन में होती है। तो ये वहां के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होती है। जैसे बंगाल में वहां पे इस समय चावल की खेती कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाती है। जूट के लिए फायदेमंद हो जाती है, क्योंकि बंगाल में जूट की भी खेती की जाती है। फिर उसके बाद अगर आसाम में हम लोग जाएं तो आपको पता होगा कि ज्यादातर हमारे इंडिया में जो टी प्रोडक्शन होता है वो असम रीजन में होता है। तो जो ये काल बैसाखी है, तो असम के लोगों जो वहां पे टी की खेती कर रहे होते हैं, चाय की खेती कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद होती है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो नेक्स्ट वर्ड यूज किया गया है मैंगो शार। मैंगो शार मीन्स जो ये भी एक लोकल रेनफॉल है, और ये हमारा साउथ का रेनफॉल है। जैसे हमारा केरला हो गया एंड सम पार्ट ऑफ द तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पे ये मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में जो रेनफॉल रिसीव होती है, इसे हम लोग बोलते हैं मैंगो शार। एक्चुअली इसका नाम मैंगो शार क्यों रखा गया?
Actually, this rainfall helps in the replanning of the mangoes. Replanning of the mangoes means ये आम के पकने में मदद करती है, इसलिए हम लोग इसको मैंगो शार बोलते हैं। और फिर उसके बाद से कई जगह पे इसको चेरी ब्लॉसम भी बोला जाता है। चेरी ब्लॉसम मीन्स क्योंकि यहाँ पे कॉफी की भी आपको पता है कि साउथ इंडिया में ज्यादातर कॉफी की भी खेती की जाती है, तो जब कॉफी के फल आते हैं शुरुआत में तो वो रेडिश कलर के चेरी की तरह होते हैं, तो इसीलिए इसको चेरी ब्लॉसम भी बोला जाता है। तो नाउ द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीटेड एंड आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव any problem in the question so you can ask me through my personal WhatsApp number. Thank you.